Hello, student. Hi. Today the topic is about unit cell here. So unit cell is one of the important topic of your solid state. So of solid state unit we have a that is unit cell here. What do you mean by unit cell in a crystallitic system here? So before proceeding to what do you mean by unit cell? So how a unit cell can be created? How we can just signify what you mean by the unit cell here? So first we have about how the unit cell can be created. So first we have about the crystal lattice here. So what do you mean by crystal lattice? तो ये crystal lattice means whenever we are going, जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर को लैटिस को पॉइंट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उन सभी पॉइंट्स को जब जोड़ते हैं हम उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज क्रिस्टल लैटिस here. So for example, to understand this crystal lattice we have, let us suppose this is a point which we have here. Okay, so these are the points which are considered to be as a constituent particles of any crystal lattice है. Now जब इन points को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज क्रिस्टल lattice है. So this is what we are explaining about what you mean by this crystal lattice here. Now crystal lattice, after crystal lattice, the constituent particle crystals are arranged in a definite fashion in a three dimensional arrangement है. तो जब हमारे पास कोई arrangement three dimensional होगा, let us suppose we have a three dimensional arrangement as I told you earlier. I'll show here कि this is, let us suppose this is the constituent particles like atoms, ions or molecules which are arranged. So this is a one dimensional. Now when second layer is placed below this one here, this combined gives us a two dimensional here. So on a plane of paper we can only draw up to one dimension as well as the two dimensional here. But for the three dimensional arrangement what we have representation like this way कि हम इन तीन चारों को जोड़ेंगे और हम एक और यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मेशन कर देंगे. तो इस फॉर्मेशन से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? दैट इज अ थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट. तो कहता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट में प्लेस करते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर को हम जनरली क्या कहते हैं? दैट इज क्रिस्टल लैटिस है. तो टू डिमेंशनल एंड वी हैव द थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब हम एक पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट लैटिस कहेंगे. और जब इन सभी पॉइंट्स को हम एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो वो हमारे पास क्या दे देगा? क्रिस्टल लैटिक स्ट्रक्चर देता है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव. That is what you mean by this you can see crystal lattice, such a regular arrangement of the constituent particles of a lattice and the constituent particles of crystal are arranged in a definite fashion in the three dimensional structure. So when the constituent particles are arranged here in a definite fashion we get different type of the crystal structure and that is also called as the different crystallitic structures here. Okay, now after here we have the characteristics of the crystal lattice. So what are the characteristics of the crystal lattice? That in each of, you can see each point in the crystal lattice रिप्रेजेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसको मैंने ऑलरेडी आपको कहा दैट इज पॉइंट लैटिस है. तो हर एक जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. जो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है. तो हर एक पॉइंट जो लैटिस के अंदर होगा उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट आर लैटिसाइड. द पॉइंट जॉइंड बाय लाइन जस्ट रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस. तो उनको जब जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? एक ज्योमेट्री बन जाती है. ठीक है, फर्दर वी हैव द यूनिट सेल हियर. अब ये यूनिट सेल की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये कह रहा है व्हाट वी से दैट कि दीज आर द पॉइंट. सो व्हेन दीज पॉइंट्स आर जॉइंड this will give rise to formation of crystal lattice and this is the point which is called as point lattice here. इसको हम क्या कहेंगे? point lattice कहेंगे. और जो point है they may be atom, ion or molecule है. और ये जो point होगा these are the constituent particle of a molecule
an ionic solid as well as a covalent solid here. So this is what we have the unit cell. Now what is unit cell here? तो जब हमने देखा कि जब हम एक कंप्लीट क्रिस्टलैटिक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और अगर वो स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल पार्ट में होगा दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल. तो व्हाट यू मीन बाय यूनिट सेल? Unit cell is a 3-dimensional portion of complete space lattice which when repeated over and over again in different direction produce a complete space lattice and that is called as a unit cell here. तो जब हम लैटिस पॉइंट्स को जोड़ते हैं और वो हमारे पे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्म में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज यूनिट सेल है. तो एक यूनिट सेल को हम ऐसे कंसीडर करेंगे. फॉर एग्जांपल यूनिट सेल कैन बी एक्सप्लेन्ड एज लाइक यू कैन से, अगर हम यूनिट सेल की बात करेंगे तो यूनिट सेल इस तरह से होगा कि दीज आर द पॉइंट लेटिक्स विच आर जॉइंड टुगेदर एंड दीज आर फर्दर विच जॉइंड टुगेदर एंड दीज आर कॉल्ड एज द दैट इज यूनिट सेल के. अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट. तो एक हमारे पास अरेंजमेंट क्या है? ये वाला, दिस इज 1 डायमेंशनल. ये हो गया हमारे पास 2 डायमेंशनल, इनको हमने ज्वाइन किया. अब तीसरा जो हमारे पास ये है दिस इज द 3 डायमेंशनल ज्वाइनिंग है. तो जब इनको आपने ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास क्या बन गया? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए यू कैन से क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस है. अब ये जो हमारे पास पॉइंट जो बना है मॉलिक्यूल, जहाँ एक स्ट्रक्चर बना है, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल के. व्हाट वी कॉल इट एज ए यूनिट सेल है. तो यूनिट सेल की जो हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यूनिट सेल इज जस्ट लाइक, हम बात करते हैं कि अगर हम एक रूम में देखें, जहाँ एक रूम की बात करेंगे तो एक पूरे कमरे की बात करेंगे तो यूनिट सेल हमारे पास क्या होगा? यूनिट सेल इज नथिंग, इट इज़ ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए रूम है. तो किसी भी रूम का जो बेसिक यूनिट ब्लॉक है वो हमारे पास क्या होता है? दैट इज ब्रिक है. वो क्या होती है हमारे पास? ब्रिक. तो ब्रिक को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल ऑफ ए रूम के. तो हमें पता है कि जब हम एक रूम कोई फॉर्मेशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक ब्रिक के ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर आगे पीछे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जब हम एक ब्रिक का पूरा अरेंज करते हैं अप टू सर्टन हाइट तो वी गेट ए रूम के. तो उसी तरह से जो हमारे यूनिट सेल है, इट इज़ आल्सो द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए crystal lattice or space lattice है, as just like a brick which is also act as a building block of a room. So there is no difference between you can say unit cell as well as a you can say brick here. Both are equal in equal form here. ठीक. Now जब हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो हमने बनाया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. नो, जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसके हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होंगे. पैरामीटर मींस द यू कैन से द मेजरमेंट, हाउ वी कैन मेजर ए यू कैन से द यूनिट सेल है. तो यूनिट सेल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेंथ एज वेल एज विद द सर्टन एंगल्स है. सो वी हैव 2 different parameters on which is we can classify a unit cell. So its dimensions, that is length along the 3 edges may or may not be perpendicular. हो सकता वो एक जैसी हो सकता वो एक जैसी ना हो. ठीक. Angle between edges, that is alpha, beta as well as a gamma है. तो 3 angles are also represent in case of the unit cell. तो जैसे मैंने पीछे यूनिट सेल बनाया था तो वहाँ पे आपने देखा होता है there are 3 different you can say edges as well as a angle representing a unit cell here. So this can be further you can say explained by this one here. In this diagram what we have a unit cell which is cubic in nature or cubic. ठीक है. तो ये हमारे पास जो edge है that is V, this is your this is C and this is your A है. तो ये हमारे पास C एज है, लेंथ है, दिस इज आल्सो ए B एंड दिस इज A1 है. तो 3 हमारे पास क्या होंगी? एजेस होंगी. और ये कि हमारे पास पैरामीटर्स हैं. हमारे पास ये एक पैरामीटर हो गया लेंथ का और दूसरा हमारे पास है दिस एंगल अल्फा, बीटा एज वेल एज अ गामा है. तो ये जो 3 हमारे पास पैरामीटर हैं, 3 हमारे पास किसके? एंगल के. 3 हमारे पास किसके?
लेंथ के। तो ऑन दीज 3 पैरामीटर वी कैन क्लासीफाई ए यूनिट सेल है। बट सारे के सारे जो पैरामीटर हैं ए बी एंड सी दे मे बी सेम आर मे नॉट बी सेम केयर। हो सकता वो इक्वल हो सकता वो इक्वल ना हो। सिमिलरली एंगल्स बीटा एज वेल एज गामा दे मे बी सेम दे मे नॉट बी सेम के। तो अगर हमारे पास इन 6 के 6 पैरामीटर की अगर हम देखेंगे तो हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पैरामीटर है ए unit cell can be classified into 7 type of cells here or 7 types of the unit cell here। तो वो कैसे होगा, उनकी एजेस और उनके एंगल के बेसिस के ऊपर। सो किस किस तरह का होगा हमारे पास, वी कैन क्लासीफाई here what we find that a unit cell and this system axis as well as the angle here। तो we have the first that is first unit cell, they may be your you can say cubic। अगर हम क्यूबिक की बात करें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे अल्फा a is equal to b is equal to c and alpha is equal to beta is equal to gamma that is 90 degree। So these are the edges as well as the angle which can be explained here कि how the parameters are different here। तो क्यूबिक में हमारे पास एंगल 90 डिग्री का होगा और एजेस सभी की क्या होंगी, एक जैसी होंगी। सिमिलरली इन केस ऑफ टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल में हमारे पास क्या है a is equal to b but b is equal to not c here, but angle also are considered to be same like the cubic है। and in orthorhombic what we have a is equal to not b, b is equal to not c, all the 3 edges are not equal but the angle remain the same here। तो how many unit cell we get on the basic parameter, that is 7 here। So this is 1, this is 2 and this is 3 here। Now still we have the 4 other, this is monoclinic, hexagonal, rhombohedral as well as the triclinic here। तो यहाँ पे तीनों की तीनों जो एजेस थी वो डिफरेंस है और यहाँ पे भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट है, यहाँ पे दो सारी की सारी बराबर है और यहाँ पे सारी की सारी क्या डिफरेंट है। तो व्हेन वी कंसीडरिंग हियर द एज लेंथ as well as the angle we find that there are 7 different types of the unit cell and they are classified as cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, hexagonal as well as the रोम्बोहिड्रल है। तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से 7 यूनिट सेल हमारे पास एक्सप्लेन है। तो दे आर फर्दर क्लासिफिकेशन जो कि हमारे पास वो है, दिस इज सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एज वेल एज द बॉडी सेंटर। तो ये हमारे पास जो है दीज आर द 1 2 3 4 5 6 and 7 unit cell here। Now these 7 unit cells are further classified into 14 new different type of structures here and that 14 different type of structures are called as the Bravais lattice here। This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 as well as the 14 here। So these are the 14 new structures which are called as a Bravais lattice here। So what are Bravais lattice here? So before proceeding toward Bravais lattice we have the type of the unit cells and the classification of these types of the unit cell on the basis of the constituent particle position here, on the basis of constituent particle position and these constituent particles may be called as a point lattice। ठीक, और जब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्पेस लैटिस बनेगा। तो हमारे पास दो तरह के यूनिट सेल होंगे। फर्स्ट हमारे पास है दैट इज परमिटिव यूनिट सेल है। परमिटिव यूनिट सेल आल्सो कॉल्ड एज अ सिंपल यूनिट सेल है। ठीक, नो द यूनिट सेल इन विच, अब ये कौन सा होगा कि वो यूनिट सेल जहाँ पे सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे, एक क्यूब के कॉर्नर पे जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उस तरह के यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे, दैट इज परमिटिव यूनिट सेल केयर। अब दूसरी तरह का हमारे पास कौन सा है, दैट इज अ नॉन परमिटिव यूनिट सेल केयर। और नॉन परमिटिव यूनिट सेल को हम और क्या कहते हैं, दैट इज सेंटर्ड यूनिट सेल केयर। ठीक है, तो नॉन परमिटिव यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे, दैट इज हियर व्हाट वी हैव
that is non-primitive unit cell. This is non-primitive unit cell. Non-primitive unit cell are also called as the centered unit cell. Why this is called as centered unit cell? In this case what we find that कि जितने भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, क्योंकि तब तक तो वो क्रिस्टल लैटिस बनेगा ही नहीं, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन एडिशन टू the constituent particles at corner, they are present at the center of the unit cell here. So what are different types of the primitive unit cells? We have the phase centered unit cell, that is consist of one constituent particle present at center of each phase in addition to those present at the corner. Another is the body centered, another is the end center here, another one is also we have the edge center here. तो इसमें हम फेस सेंटर में तो देखा हमने क्या कहा कि कॉर्नर पे लेट अस सपोज जस्ट यू हैव टू अज्यूम ए रूम हियर. आप अगर एक रूम को अज्यूम करें इस तरह से, लेट अस सपोज दिस इज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ ए रूम. अगर हम एक रूम को अज्यूम करें तो उसकी कितने दीवारें होंगी? 4 तो दीवारें होंगी जो कि मेन है. एक हो गया फ्लोर, एक हो गया आपका रूफ है. तो 4 हमारे पास, 6 हमारे पास इसको दीवारें कंसीडर कर लेंगे. अब कहता है कि ये जो सारी की सारी दीवारें, दिस इज कॉल्ड एज अ फेस ऑफ ए क्यूब है. इनको हम क्या कंसीडर करेंगे? फेस ऑफ क्यूब है. तो कहता है फेस सेंटर में क्या होगा? कॉर्नर पे तो है ही है, साथ में कहाँ पे होगा? फेस ऑफ ए क्यूब के. और बॉडी सेंटर में क्या होगा कि बॉडी सेंटर कॉर्नर पे तो रहेंगे हमारे पास यूनिट सेल और सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लेकिन एक कहाँ पे रहेगा? सेंटर ऑफ द यू कैन से क्यूब के. ठीक. और एंड सेंटर में क्या होगा कि अल्टरनेट किसी भी दीवार पे हो सकता है, और मोस्टली हम क्या कहते हैं? अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब है. तो अपोजिट फेस ऑफ क्यूब के अंदर जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एंड सेंटर है. और एज सेंटर में क्या होगा हमारे पास? एज सेंटर में क्या होगा हमारे पास? तो अगर हम एक क्यूब की बात करें तो दिस इज बट वी हैव ए क्यूब. तो इसमें क्या होगा हमारे पास? इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर के. ठीक है. तो अगर आप रूम में बैठे हैं तो रूम को एनालाइज करो कि जो कोना होगा हमारे पास, दैट इज द कॉर्नर ऑफ एनी रूम हियर. दिस इज लाइक दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर. तो कहता है एक हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? प्रेजेंट होगा. तो टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब आर ए रूम इफ यू आर गोइंग टू काउंट हियर, दैट इज 12 है. तो हर एक एजेस पे भी हमारे पास क्या होगा? एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल होगा. और इस तरह के यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? दैट इज एज सेंटर्ड यूनिट cell here. So this is another type of the unit cell which is also called as a non-primitive unit cell here. So now how we can explain that how these atoms or unit cells are represented. So first we have a primitive, that is a simple unit cell. All the constituent particles are present in the corner. When we have phase unit cells, in addition to we have a corner, there are 6. We know that there are 6 phases of a cube and we have the 6 constituent particle in addition to that is at the corner. तो इसको गिनेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 6. तो ये 6 हमारे पास क्या होंगे? That is constituent particles present at the face of his simple unit cell here. Then we have body centered. Body center में आपके पास center में which is not you can say linked or joined with any face as well as the you can say corner as well as edges है. This is end center, any two alternate face. जहाँ तो यहाँ पे रहेंगे, अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ दोनों पोजीशन पे आ सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. They are opposite end of the फेस ऑफ द क्यूब है. सो दिस इज अनदर डायग्राम बाई विच वी कैन ईजिली एक्सप्लेन कि किस तरह से हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल हैं, दैट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम होगा और नॉन प्रिमिटिव में एक हमारे पास 3 या फिर 4 डिफरेंट तरह के यूनिट सेल होंगे, जिसमें फेस सेंटर्ड जिसको हम लिखते हैं दिस इज ऑल्सो रिटन एज दैट इज FCC, दिस इज BCC एंड दिस इज एज सेंटर्ड यूनिट cell here. That EC, not U, this is EUC here.
एंड सेंटर यूनिट सेल है। तो इस तरह से हमारे पास 4 डिफरेंट या 5 डिफरेंट तरह के यूनिट सेल बनेंगे विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द or positioning of the constituent particles. So as I already told you कि in addition to this you can say 7 unit cell which we have, and we know that each unit cell do not have a same type of the parameters here, and on the basis of that one here we have a 14 different types of the unit cell है। और ऐसा नहीं है कि हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कि ये हमारे पास 7 यूनिट सेल हैं और हर एक 2 देगा तो टोटल होंगे 14। नो, सो दीज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर है। तो पैरामीटर को अगर हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास जो परमिटिव और नॉन परमिटिव यूनिट सेल है दे कम इनटू एग्जिस्टेंस है। तो क्यूबिक में हमारे पास सिंपल क्यूब होगा, फेस सेंटर्ड होगा या फिर बॉडी सेंटर होगा। तो सिंपल के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट तरह के यूनिट सेल होंगे। टेट्रागोनल के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 होंगे, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास चारों के चारों यूनिट सेल होंगे, क्यूबिक भी होगा, फेस सेंटर भी होगा, बॉडी सेंटर भी होगा, एज सेंटर भी होगा। मोनोक्लिनिक में हमारे पास 2 ही रहेंगे, दैट इज सिंपल एज वेल एज द बेस सेंटर एज सेंटर। लेकिन ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोइड दे all 3 contain the single type of the you can say unit cell here. What type of unit cell? That is primitive and non-primitive type of unit cell. So this is triclinic, hexagonal as well as the rhombohedral type of the unit cell here. ठीक? Now what you mean? Now we have the 14 different type of the unit cell which can be explained on the basis of you can say 7 different type of unit cell, and also on the basis of that is primitive and non primitive type of the unit cell here. तो इसमें भी हमारे पास क्या, there is arrangement of the you can say constituent particles in the 3-dimensional position here. तो 14 lattice correspond to 7 crystal system are known as that is Bravais lattice. We generally represent the unit cell by 3-dimensional arrangement of the spheres here. Now this is what we have a different type of the you can say unit cell which are the 14 different type of the Bravais lattice here. We have triclinic, centered, simple, monoclinic, orthorhombic. This is rhombohedral, tetragonal, hexagonal as well as a cubic type of the unit cell here. So this is what we have. Now next we have coordination number. So what do you mean by coordination number? Coordination number actually represent the coordination between all the different you can say different or same type of the unit cell here. So the coordination number can be represented by this way here. Coordination number means कि how many other atoms touching a particular type of the atom here. That is how many other atoms are constituent particles touching the boundary of a constituent particles here. Let us suppose this is I am considering example that is X here. Now to this X here, how many atoms are touch their boundary? That is 1 and 2 here. So this shows that the coordination number of X is equal to 2 here. अगर मैं इसको बात करूं, this is another one here. That is Z here. तो इसके साथ हमारे पास क्या है, 2 की बाउंड्री है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सेंटर में एक ड्रा कर दूँ और ये आपके पास ये पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इस स्पीसीज का जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारे पास 4, बिकॉज ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये चारों की बाउंड्री के साथ क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के 4 और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जिससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 बनता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गिवन यूनिट सेल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल टचिंग दैट पार्टिकल के। तो हेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्योंकि सेंटर में जो है उसको 2 टच कर रहे हैं। हेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 3 यहाँ पे जो सेंटर में उसको 3 और कर रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और सॉरी 6 है क्योंकि ऊपर और नीचे भी है, और यहाँ पे 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो 8 है हमारे पास, जो कि एक जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। तो हम किस तरह से इसको
कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए पर यूनिट सेल ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. तो कैलकुलेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन आइटम प्रेजेंट एट द डिफरेंट लैटिस साइट. एन एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, सो इट्स कंट्रीब्यूशन 1 into 1/8 दैट इज 1/8 है. तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास क्या है कि एक यूनिट सेल है. दिस इज व्हाट वी हैव ए यूनिट सेल. इसको थोड़ा सा मैं दिस इज द यूनिट सेल. दिस इज द बेसिक यूनिट सेल. नो आई हैव टू draw this one, and this can be further this is the unit cell here. Now इस केस में अगर आप might be the clear cannot be clear one, or you can say the picture cannot be clear one, so I'm further try to draw here. So this is what we have, the unit cell. This is another one which is blurred one here, but when we represent here in this case, so this is the center here. Similarly, we have to draw here the centered. Now, in this case, what we observe that कि this is one unit cell here. जो फ्रंट वाला पार्ट है वो एक यूनिट सेल है, और उसी तरह से एक हमारे पास क्या है पीछे की तरफ, जहाँ तो आप इसको कहोगे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 and this is 5 and this is 6 and this is 7 and this is 8 different type of the you can see unit cell which is present in this crystallitic system के. तो एक फ्रंट पे है, एक बैक साइड, एक ऊपर है, एक उस साइड, एक इस साइड. तो इस तरह से हमारे पास क्या है कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रहा है. अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कॉर्नर है, दिस इज द कॉर्नर हेयर, दिस इज द कॉर्नर विच इज हेयर, या फिर इस कॉर्नर को हम बात करेंगे, सॉरी हम इसकी बात करते हैं. इस कॉर्नर को अगर मैं देखूंगा तो इस कॉर्नर को कितने और यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, दैट इज ऑल द 8 यूनिट सेल शेयरिंग द कॉर्नर ऑफ ए सिंगल यूनिट सेल हियर. आज यू कैन से इस कॉर्नर को 8 और यूनिट सेल क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. तो 8 और यूनिट सेल अगर शेयर करते हैं उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, 1 एटम प्रेजेंट इन 8 यूनिट सेल है, कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 यूनिट सेल के अंदर क्या कर रहा है, अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम्स in a unit cell here, in a unit cell here. This is what we have in this case. Now second contribution we have at atom at the corner is shared by 8 unit cells, so its contribution 1/8 as I told you. An atom on the face is shared between 2 unit cells, so its contribution is 1 into 1/2. तो just like a room, अगर हम एक रूम की बात करते हैं तो जो एक दीवार होती है वो 2 रूम की क्या है, एक सेंटर वाली होती है. तो इट मीन्स जो रूम है इट इज शेयर्ड बाय द दैट यू कैन से दैट वॉल इज शेयर्ड बाय द 2 रूम्स है. ठीक है, तो ये वो जो सेंटर वाली दीवार है वो 2 रूम शेयर कर रहे हैं. तो रूम कितना हो गया हमारे पास 2, और दीवार कितनी है हमारे पास 1. तो हम क्या करेंगे, दैट इज 1/2 हियर. तो कंट्रीब्यूशन क्या होगी हमारे पास 1/2. सिमिलरली जब एन एटम प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, अगर वो सेंटर में कोई प्रेजेंट है कोई एटम, तो उसको कोई कंट्रीब्यूशन शेयर नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा जो रूम है उसको वो शेयर नहीं कर सकता. तो इसके लिए उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, 1 होगी. एन एटम प्रेजेंट है एज इज शेयर बाय 4 यूनिट सेल, सो इस कंट्रीब्यूशन इज 1/4 है. तो अगर हम एज की बात करें तो एक एज को, कॉर्नर नहीं एज को 4 यूनिट सेल क्या करते हैं, एक एज को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे हम क्या कहेंगे उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी दैट इज 1/4 है. अब कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के, अब पर यूनिट सेल के अंदर हमारे पास
नंबर ऑफ एटम्स क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट वी आर प्रोसीडिंग विद द सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें हम क्या कहते हैं, देयर इज ओनली 8 एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर है। तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, एक की है, दैट इज 1/8 है। लेकिन उसके साथ 8 और क्या है यूनिट सेल हैं। जैसे हमने पहले एग्जांपल ली कि 8 यूनिट सेल बनाए, लेकिन एक कॉर्नर को सारे के सारे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक यूनिट सेल के साथ 8 कॉर्नर हैं, तो 8 कॉर्नर को 8 और यूनिट सेल क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 है, सो द वैल्यू शुड बी इज इक्वल टू 1 एटम के। तो बॉडी सेंटर में हमारे पास क्या होगा, 8 कॉर्नर है, ठीक है। तो दैट शेयर बाय 1/8 इंटू 8, दैट इज 1 एटम। तो एक कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू दैट इज 2 हियर। So it is 1 + 1 is equal to 2. The total number of atoms that is present per unit cell, that is 2 in case of the body centered cubic cell here. Now in case of face centered unit cell here, again 8 जो होंगे वो एक ही वैल्यू देंगे हमारे पास कि 1 atom shared by 8 other unit cell, but total number of atoms present in a single unit cell is 8 है। तो 1/8 × 8 that is equal to 1। और phases हमारे पास कितने होते हैं, we know that it is total number of phases of a cube is 6 and 1 atom is shared by 2 phase of a cube, so its value is equal to 3। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4 है। तो क्यूब फेस सेंटर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे हमारे पास, दैट इज 4 है। तो इस तरह से हम जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे मैंने एज की बात की, तो एज क्या होगा हमारे पास, दीज आर द एजेस है। तो ये जो एज है ये 4 और डिफरेंट यूनिट के सेल के साथ शेयर होंगे, लेकिन कॉर्नर जो हमारे पास वो 8 के साथ हो, क्योंकि ये जो पीछे हमारे पास क्यूब यूनिट सेल होगा वो एज को नहीं शेयर करेगा। एज को शेयर कौन सा करेगा, जो एक तो इसके ऊपर है, एक यहाँ पे है, 3 हो गए, एक जो यहाँ पे बनेगा इस तरह से। तो इसलिए हमारे पास हम कह रहे हैं कि एज के केस में हमारे पास 4 होंगे। फेस जो होगा हमारे पास दैट इज शेयर बिटवीन, जैसे ये फेस है, दिस इज शेयर बिटवीन 2 यूनिट सेल 1 and 2। तो इसलिए हमारे पास उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल की 2 होगी, बॉडी सेंटर की हमारे पास 2 होगी, सॉरी फेस सेंटर की 4 होगी, बॉडी सेंटर की हमारे पास 2 रहेगी, और एज सेंटर की भी हमारे पास क्या होगी, दैट इज 3 है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट। तो एज सेंटर की अब हम फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कंट्रीब्यूशन है। दिस इज फेस सेंटर, दिस इज योर सिंपल प्रिमिटिव एंड दिस इज अ बॉडी सेंटर यूनिट सेल है। तो अगर हम एज सेंटर की बात करें, लेकिन एज सेंटर में प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, दे आर अल्टरनेट है, दे आर अल्टरनेट है, इसलिए हमारे पास उसकी जो शेयरें होंगी दैट इज डिपेंड अपॉन कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम एज सेंटर की बात करेंगे, यू आर कंसिडरिंग फॉर हेयर द एज सेंटर है, तो एज सेंटर की कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगी, दैट इज 1/8 × 8, दैट इज फॉर द कॉर्नर। ये कब किसकी बात होगी, दैट इज कॉर्नर के ऊपर क्यूब है। लेकिन एक जो यूनिट सेल है हमारे पास, एक जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, दैट विल बी शेयर्ड बाय 4 अदर एजेस, शेयर्ड बाय 4 अदर एजेस, बट देयर आर अबाउट 12 such edges present in a single cube here. तो their contribution is about 3 है। तो then 1 + 3 is equal to 4 है। तो हम क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड और एज सेंटर जो होता है उनकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो दोनों की क्या होगी, एक जैसी रहेगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट दैट इज यूनिट सेल, हाउ दे कैन बी आर क्लासिफाइड इन ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर, आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ the constituent particle present at a respective position here. They are present at the corner as well as the other position in a unit cell. So this is all about we have unit cell. Hope student you understand this topic very much, and even though if you have certain query regarding to this one here, you can ask me anytime at my WhatsApp number here. So this is what we have. Okay student, hope so you understand here. Thanks a lot here.